الحمدللہ رب الارباب والصلاة والسلام علی سید العباد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبوت ختم تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں باجماعت نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے انسانیت کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد انسانیت کے لیے رنگا رنگ اور قسمہ قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری فرمایا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ تو سامعین کرام، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سلسلہ ختم ہوا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ زندیق، کافر، واجب القتل اور مرتد ہے، اس لیے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ کم و بیش قرآنی آیات 100 کے قریب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور احادیث کے انبار کے اندر تقریباً 210 احادیث عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ کسی چیز کی یقین کے لیے، کسی چیز کے اوپر اعتماد کے لیے ایک ہی دلیل بڑی کافی ہوتی ہے، لیکن قرآن کی 100 آیات اور 210 احادیث عقیدہ ختم نبوت نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہلا رہی ہے۔ اس لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیں قرآن میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آخری رسول ہیں، وخاتم النبیین، رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اس کی دلیل دیکھیں، اللہ رب العزت نے میدان عرفات کے موقع پہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو مکمل کر کے اس بات کی دلیل ثبت کر دی کہ دین بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور تم کو تمہارے لیے ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو بطور تمہارے لیے دین پسند فرما لیا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت واضح ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم اور علاقے کی طرف آئے ہیں، لیکن میں محمد نبی جو ہوں میں تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون
कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु नबियुन, फरमाया मेरे बाद तकरीबन 30 के करीब लोग नबुव्वत का दावा करेंगे और उनमें से हर एक ये कहेगा कि मैं नबी हूँ। फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, लोगों सुन लो मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसी तरह नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकान की मिसाल दी, फरमाया मेरी और मुझसे पहले आने वाले अंबिया की मिसाल एक मकान की तरह है, एक महल की तरह है। जिस तरह एक इंसान ने बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील महल तैयार किया, लोग आते हैं देखते हैं रशक करते हैं, इतना हसीन और जमील महल है, लेकिन उस महल के अंदर एक ईंट की कमी है। लोग जब उस जगह को देखते हैं, उसके अंदर उस नक़्स और कमी को देखते हैं, लोग कहते हैं काश ये कमी अगर पूरी हो जाती तो इस महल की खूबसूरती को और भी 4 चांद लग जाते। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस महल की आखिरी ईंट मैं हूँ। गोया के वो सारा महल तमाम अंबिया किराम हैं और आखिरी नबी मैं हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान ये भी है, इन्ना बैना यादजी साअ कज़्ज़ाबीना फ़ज़रुहुम, लोगों क़यामत के करीब बहुत सारे झूठे आएंगे, फ़ज़रुहुम, उनसे बच के रहना। तो दोस्त मैं आप अहबाब के सामने एक फितना कादियानियत को अयां करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर फितना कादियानियत इतना तूल और मजबूती पकड़ता जा रहा है और मुसलमानों की जड़ें काटता हुआ नजर आ रहा है और जिंदा दिल नए नए होने वाले मुसलमान भी उनका शिकार हो जाते हैं। लोगों को अपने बहकावे में लेकर अपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरफ उसको आखिरी नबी होने के लिए तस्लीम करवाने के लिए जिदोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी खबासत भी आया है। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐसा खबीस और लाइन इंसान है जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी गुस्ताखी की। कहता है कि मैं अल्लाह का हाथ हूँ, मैं अल्लाह का हाथ हूँ। और इसी तरह कहने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हुए कहता है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3000 मोजिज़े, जबकि मुझे 3 लाख मोजिज़े अल्लाह ने अता किए हैं। और इसी तरह अल्लाह की गुस्ताखी इस तरह भी करता है, कहता है कि मैं अल्लाह की बेटी, मैं अल्लाह का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, इस तरह गुस्ताखियाँ करता चला जाता है, हत्ता कि तमाम अंबिया किराम की गुस्ताखियाँ करता है। कहता है कि मैं आदम हूँ, मैं नूह हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं ईसा हूँ। और कहता है आगे मैं ही मोहम्मद हूँ। इसी तरह नऊज़ुबिल्लाह तमाम सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ करता है और इसी तरह कुरान की भी गुस्ताखी करता है। कहता है कि कुरान खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। नऊज़ुबिल्लाह ऐसी इसकी गुस्ताखियाँ हैं। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1840 के अंदर गुरदासपुर के जिला में एक कस्बा, जिला गुरदासपुर के एक कस्बा कादियान के अंदर पैदा होने वाला ये मलऊन 40 साल का अरसा पसे पर्दा रहता है, लोगों से छुप के रहता है। लेकिन 1880 के अंदर 1880 के अंदर इस बंदे ने अपने आप को मुल्हम होने का दावा कर दिया। मुल्हम का मतलब है कि मेरे ऊपर इल्हाम होता है, मेरे ऊपर वही होती है। और इसी तरह 1882 के अंदर इसने दावा किया कि मैं अहमद और मैं मोहम्मद हूँ और साथ कहने लगा कि मैं मुजद्दद हूँ। मुजद्दद उसको कहते हैं कि अल्लाह हर सदी के अंदर एक मुजद्दद भेजा करता है। कहता कि सदी का नाउज़ुबिल्लाह मैं मुजद्दद हूँ। इसी तरह 1884 के अंदर बाकायदा तौर पर इस लाइन और खबीस ने रिसालत का दावा कर दिया। और इसी तरह 1891 के अंदर कहने लगा कि मैं मसीह ईसा हूँ, मैं मिस्र ईसा हूँ, मैं ईसा की तरह हूँ। और इसी तरह 1892 के अंदर इसने बाकायदा तौर पर जो बंदा नबूवत का दावा करता था उसके ऊपर लानत बरसाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि 1898 के अंदर इसने खुद नबूवत का ऐलान कर दिया और बिल आखिर 1901 से लेकर 1908 तक इस खबीस ने अपने आप को साहिब शरीयत
नबी और रसूल होने का दावा कर दिया। कभी कहता है मैं खुदा हूँ, कभी कहता है मैं नबी हूँ। दोस्तों, बतलाने का ये मकसद था कि ये फिरका इंतहाई मजबूती के साथ मुसलमानों के अंदर मुसलमानों की जड़ें काटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए दोस्तों, बाकायदा तौर पर अपनी मसाजिद के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से सेमिनार करवाइए और इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करवाइए। अपने घर, अपने खानदान, फैमिलीज को अकीदा खत्म नबूवत के बारे में पता दीजिए। बाकायदा तौर पर अपने घरों के अंदर ऐसी किताबें रखे, पंफलेट रखे जिसमें अकीदा खत्म नबूवत का प्रचार हो। अपने बाकायदा तौर पर इलाकों के अंदर चौकों चुरस्तों का नाम रखे अकीदा खत्म नबूवत, ताकि आमद अकीदा खत्म नबूवत जिंदा और जावेद रहे। और मुसलमानों की ये जो जड़ें काटता हुआ फिरका नजर आ रहा है, इनको जांच पड़ताल करें। ये बाकायदा तौर पर हमारे मोहल्लों के अंदर रहने वाले गरीब मुसलमान, उनको बाकायदा तौर पर राशन अता करते हैं, उनको वीजे की ऑफर करते हैं, इनको बाकायदा तौर पर शादियों की ऑफर करते हैं और उसको बाकायदा तौर पर अपने मसल के अंदर, अपने मजहब के अंदर ले जाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अकीदा खत्म नबूवत की चौकीदारी करने की तौफीक अता फरमाए। बाकायदा तौर पर सहाबाए किराम ने, सल्फ सालिहीन ने इसके बारे में कदम उठाए हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ने जब खिलाफत के ऊपर आए, खुतबा दिया तो कहने लगे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नहु ला किताब बादल कुरान, कुरान के बाद कोई किताब नहीं, वला नबी बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं। और इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया, उनके जमाने के अंदर, दौर के अंदर एक बंदे ने नबूवत का ऐलान कर दिया और बाकायदा तौर पर लोगों को कहने लगा कि मैं इसकी निशानियां भी दूंगा, अलामतें भी दूंगा। इमाम साहब कहने लगे, मन तालाबा मिन्हु अलामतन फकद कफरा, जिस बंदे ने उस बंदे से नबूवत की अलामत भी पूछी, वो बंदा काफिर हो गया। लिमन लिकौलिही ला नबी बादी, इसलिए कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए उससे उसकी नबूवत की अलामत भी नहीं पूछनी। इसी तरह महमूद आलूसी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा अकीदा खत्म नबूवत का इनकारी हो, उसको काफिर करार दे दिया जाए, और जो बंदा इसके ऊपर इसरार करे, अड़ जाए, फरमाया वो बंदा वाजिबुल कत्ल है, उसको इस सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 26 मई 1908 को लाहौर के अंदर हैजे की बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ और लाहौर के अंदर सारी जिंदगी खबासत मिलाई, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका आखिरी जो मुकाम था वो भी खबीस गंदगी वाली जगह वाशरूम में किया, और ये वाशरूम के अंदर 26 मई 1908 को वासिले जहन्नम हो गया। और इसको लाहौर से कादियान के अंदर बाकायदा तौर पर इसको वहां इसका मकबरा बनाया गया। आज वहां पे लोग, वहां पे इनकी अपनी जन्नतें हैं, अपनी जहन्नमें हैं, और लोगों को बाकायदा तौर पर दिखाते हैं ये हमारी जन्नत है, ये हमारी जहन्नम है, और मुसलमानों को ऐसी दलीलें देते हैं कि देखो भाई, हम भी मुसलमान हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम ज़कात अदा करते हैं, हम नबी को नबी मानते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, और सादा मुसलमान यकीन कर लेता है, इनके बहकावे के अंदर आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा अपने मसलक से फिर जाता है। इसलिए दोस्तों, क़ीदा ख़त्म नबूवत की चौकीदारी कीजिए। इसलिए हमें अपने घरों के अंदर, मसाजिद के अंदर, चौक चौरस्तों के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत का प्रचार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो कुछ सुना सुनाया इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल